Good morning, everyone. I'm going to start today's session. Uh, Give me a minute. Let me start. Yes, good morning. So today we are going to talk about the Constituent Assembly. Yesterday we talked about Constitution. We talked about why is it important. We also talked about what are the conditions which make our Constitution practical and working in the country. Today we also talked about some historical aspect of the constitution, that how was the idea of constitution was given, the Britishers accepted it, and then they formed, by the Indian Independence Act they formed a constituent assembly. इतनी बातें हमने कल कर ली थी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र हुआ था. आज हम उस असेंबली की बात करने जा रहे हैं, उस रिस्पेक्टेड असेंबली की जिसने हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. You can see on the left side of the screen there is a seal. It is a seal of Constituent Assembly. I remember I was in a constitution quiz, I was in a final, I was broadcasted on Rajya Sabha TV2. So in that particular quiz this question was asked, means the portion of Constituent Assembly was taken away and only Indian map with an elephant was shown and asked that what is this. So ऐसे क्वेश्चंस भी मतलब थोड़ा मैंने इसको लगा दिया सील, ऐसे ही जानकारी होनी चाहिए. एकेडमिकली तो ये नहीं आपसे कभी पूछ सकते कि इसकी सील क्या थी, लेकिन फिर भी फॉर इंफॉर्मेशन. सो दिस वाज द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और अगर इफ यू विश टू use your mind, then you can think that why did Mayawati uses elephant as his party symbol? Because Ambedkar was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly, and the seal of Constituent Assembly contained an elephant. That is why Mayawati also contains an elephant in the party symbol in order to show that she has a lot of regard with Dr. Ambedkar. So things are connected in this world if you will try to ponder. So I'm going to start today's session. If you have any doubt in between the session, you can write that in the chat box. I will try to reply that. So what was Constituent Assembly? Constituent Assembly था क्या? So it was a sovereign body, first of all. Now we have discussed about sovereignty yesterday. मैं एक मिनट फिर बताता हूँ. Sovereign body means it was an independent body. It was superior. It was inferior to none other body. कोई किसी से they didn't needed to have a permission with any other body or any other person in order to perform their functions. So Constituent Assembly was a sovereign body that was formed on the recommendation of Cabinet Mission, which visited India in 1946 to draft a constitution for the country. मतलब 1946 में कैबिनेट मिशन आया था from Britain. After a lot of protest and after a lot of requests from the Britishers, they allowed us that yes, you can make your own constitution, and for that they formed the Constituent Assembly. क्योंकि अगर constitution बनाना है तो they have to tell कि कौन बनाएंगे constitution, who will be the people who are going to make the constitution for India. इतनी बड़ी population है, you want कि स्वराज, you want self rule. As I talked yesterday, that people wanted that the constitution should be made by the people of India only. That is why it was the duty of Britishers only to decide that who is going to be those eminent people who are going to make the constitution of India. क्योंकि हर कोई चाहता था पार्ट लेना, हर मतलब कुछ लोग थे जो प्रोमिनेंट थे अलग अलग पार्ट्स में. कोई रूलर था, कोई इंडिपेंडेंस के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में था, तो अलग अलग जगह के लोग थे जो हर कोई पार्ट लेना चाहते था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. बट हु वाज द अथॉरिटी दैट इज गोइंग टू डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये कैसे पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन बैठेगा? हु विल बी द पर्सन हु आर गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इन सब चीजों को के बारे में आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कितने मेंबर थे, who was the president of that assembly, who were the other position holder in that particular assembly. So we are going to discuss all about Constituent Assembly, and this is the last lecture in respect to the history of the Constitution. From tomorrow onwards, we are going to discuss about the Constitution. It was about the provisions of the Constitution. Today we are going to discuss about the history. That is, we are going to discuss about the assembly who made the Constitution. So first of all, demand of the Constituent Assembly. ये demand कहाँ से आई? In the year 1934, ये बात मैंने कल भी डिस्कस करी थी. Late M.N. Roy was a great communist leader. So he put forward the idea of Constituent Assembly. He said that there should be a Constituent Assembly in India who should be given the power to form
a constitution according to their own will. So after 1934 came the year 1935, and Indian National Congress officially demanded in that particular year that yes, we want to frame the Constitution of India, and in that respect, we want a Constituent Assembly of India. So this was asked by the Indian National Congress in the year 1935. Now, अब मैंने कल किसी ने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया था कि सर इतना अच्छा एस्टेब्लिश्ड रूल था ब्रिटेन का, तो वो क्यों छोड़ गए? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी और देवर लाइक कि अब कंट्री नहीं चला सकते, इतना सिविल डिसोबीडियंस हो गया था कंट्री में. सो ब्रिटिशर्स हैड टू अल्टीमेटली एक्सेप्ट टू दिस ऑफर ओनली. सो दे एक्सेप्टेड दिस ऑफर इन अगस्त ऑफर. दैट पर्टिकुलर ऑफर वाज नोन एज अगस्त ऑफर इन द ईयर 1940. तो दो चीजें हुई आफ्टर दिस ऑफर. ऐसा नहीं कि अगस्त ऑफर एक्सेप्ट करते ही उन्होंने कहा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हैं. सबसे पहले एक क्रिस्प मिशन प्लान आया. क्रिस्प मिशन प्लान में उन लोगों ने ब्रिटेन से कुछ लोग भेजे और उनसे कहा कि सर प्लीज गो एंड मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. बट व्हेन क्रिस्प मिशन प्लान विजिटेड इंडिया, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दी. व्हाई? बिकॉज मुस्लिम लीग वांटेड टू डोमिनियन. उस समय एट द टाइम ऑफ 1940 देयर वाज not the concept or the idea of two dominion was not that much prevalent as compared to 1947. So us time Britishers were in the mood that it is going to be one country only. So they sent up it was a kind of a committee. The Crisp mission plan was a committee. Few persons were sent from Britain in order to draft the Constitution of India. So Muslim League demanded two dominion. They rejected Crisp mission plan. So Crisp mission plan was not possible. It was not successful. Again, आफ्टर लॉट ऑफ रिकमेंडेशन सजेशन, बहुत सारी बातें हुई. उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बनना था. अब क्रिस्प मिशन प्लान फेल हो चुका था, तो कोई दूसरा प्लान लाना पड़ता, तो कैबिनेट मिशन लाना पड़ा. कैबिनेट मिशन में क्या था कि इसमें 3 मेंबर थे इन दिस पर्टिकुलर मिशन. पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. ये क्रिप्स पुराने वाले क्रिप्स ही हैं जो क्रिप्स मिशन प्लान में फेल हो गए थे. तो ये in this new cabinet mission he was also a part of it. It was again sent by the Britishers that please go and work, please go and help and assist Indians in order to frame a constitution of India. तो कैबिनेट मिशन प्लान को अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया गया. अल्दो मुस्लिम लीग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि उनको चाहिए था 2 डोमिनियन, उनको चाहिए था एक पाकिस्तान क्रिएट हो. बट कब तक आप इस बात को, इस डिमांड को नकार सकते थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान वाज फाइनली एक्सेप्टेड. And in that mission plan, it was held that we are going to make a constituent assembly, and that constituent assembly will form the Constitution of India. Now, ये बात एक्ट में, किस एक्ट में लिख के आई, ये हमने कल बात करी थी. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में दिस वाज पर्टिकुलरली लेड डाउन दैट देयर वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच विल फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट इट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट एक्ट. क्योंकि जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं मेरे साथ, उन्हें पता है कि लॉ एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अपने आप बीच में आ जाती है. There has been number of reasons behind that. So Indian Independence Act में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र करने का कारण ये था कि पहले कैबिनेट मिशन प्लान में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि yes, we are going to allow Indians to form a constituent assembly, which assembly is going to frame their own constitution. Now, what was the composition of constituent assembly? कितने लोग होंगे, कैसे होंगे, इसकी बात करते हैं. तो it was formulated by cabinet mission as I talked. So cabinet mission के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसको कैसे बनाएंगे, कितने लोग होंगे उसमें, वो लोग कैसे चुन के आएंगे. तो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का काम कैबिनेट मिशन का था. तो उन्होंने बताया द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली शुड बी 389. ये सब नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ये सिर्फ आज के लिए है. उसके बाद कल से आपको ऐसे नंबर्स एंड फैक्ट्स कम मिलेंगे, बिकॉज वी विल बी डीलिंग इनटू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. But today, as I am talking about the historical perspective, that is why these numbers are here. So the total strength of the assembly fixed by the cabinet minister was 389. Now 389 का भी composition अगर हम break करें तो 296 people were from British India and 93 were from princely state. आपको पता है around 552 princely states थे at the time of independence. अलग अलग princely states क्या होते थे? Princely states वो होते थे जो खुद रूल अपने हिसाब से करते थे. वहां एक प्रिंस होता था जो रूल करता था, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटेन को एज आवर
sovereign body या superior to them. They were like we work under the name of the king or under the name of the queen. तो ऐसा नहीं है वो इंडिपेंडेंट थे, वहां रूलर थे, वहां किंग्स थे, बट उनके नाम में, उनके काम करने के एक्शन में इट वाज लाइक दैट दे वर्क फॉर द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, और इसलिए वो टैक्स भी पे करते थे इंग्लैंड को. सो एक कॉन्सेप्ट होता है सुजैनिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को अपने से सुपीरियर एक्सेप्ट कर लेते हो. तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंग्लैंड को सुपीरियर स्टेट एक्सेप्ट कर लिया था. दे वर लाइक दैट वी फंक्शन इन द नेम ऑफ द क्वीन और इन द नेम ऑफ द किंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. सो आप इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं, ये बात कही गई थी. आफ्टर दैट सो अब दोनों जगह का कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा बनना था. ऐसा तो है नहीं कि जो ब्रिटिश इंडिया नहीं था, जो प्रिंसली स्टेट था, वहां कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉर्म फॉर ऑल ऑफ द कंट्री. सो the cabinet mission gave 296 seats to British India and 93 to princely state. Now seats were allocated in proportion to respective population. जितनी population उस हिसाब से seat. Suppose करिए if I will talk of Bombay and if I will also talk of some other place, think Banaras. So the number of seat in Bombay and Varanasi will vary depending upon the population of the particular city. So roughly one seat was allotted to every 1 million population. 1 million is 10 lakh in Indian counting. So on every 10 lakh we have one seat allotted by the Britishers. So also not just this, they were representative from each community. मतलब कितनी अच्छी तरीके से, कितने वेल प्लान्ड वे में असेंबली को बनाया गया था कि हर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को भी लाया गया कि अगर आप सिख भी आए उसमें, पारसी भी आए उसमें, हिंदू भी आए उसमें, मुस्लिम भी आए, शेड्यूल कास्ट आए, शेड्यूल ट्राइब आए, सारे कम्युनिटी के लोग वहां पे आए और वो कंट्रीब्यूट कर सकें इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेप टेकन बाय द कैबिनेट मिशन. तो इतना ज्यादा हार्डवर्क, इतना ज्यादा मतलब आप इंटेलिजेंस लगा था, रीजनिंग लगी थी हर चीज को कैलकुलेट करने में. आफ्टर दैट जो 93 लोग थे प्रिंसली स्टेट के, वो प्रिंस पे छोड़ दिया गया था. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, आपको पता होगा, अजमेर वगैरह, भोपाल हो गया, जिसमें भोपाल की मैं बात करता हूँ. सैफ अली खान के पिताजी नवाब पटौदी, ही वाज द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सो भोपाल के किंग थे वो. तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए कहा गया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने आप भेजिए. These 93 representative were going to be nominated by the princely state. मतलब उस princely state का जो king होगा वो nominate करके किसी को भेज सकता है, अपने बेटे को भेज सकता है, अपने मंत्री को भेज सकता है. He can send anyone whichever he thinks is fit for this particular purpose. But for the 296 British India, there were elections. Elections करवाए गए कि उन seats पे election होंगे, वहां से लोग चुन के आएंगे. तो ये इलेक्शन भी बहुत मजेदार था, इस इलेक्शन की भी हम बात करेंगे. तो इसलिए कहते हैं दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. ये अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट वाज अ इलेक्टेड बॉडी, ये कहना गलत है. इट वाज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी. क्योंकि जो लोग प्रिंसली स्टेट के थे वो भी वोट करते थे, उनकी भी अपनी एक वैल्यू थी, वोटिंग राइट उनके पास भी थी. तो it was partly elected and partly nominated body. Further, let's talk about the election for the Constituent Assembly. So it was held in July-August 1946. तो इलेक्शंस कितनी सीट पे होंगी? 296 पे, क्योंकि 93 तो प्रिंसली स्टेट है. On that 93 seats, the prince is going to nominate anyone. So out of 296, Indian National Congress won 208 seats, Muslim League won 73, and Independents won 15 seats. This was the composition of outcome. So इतने लोग, if you will calculate this, you will get 296 also. So 15 from Independent, 73 from Muslim League, and Indian National Congress 208. Now the seat allocated to princely state were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly. Now there was a problem. जो किंग थे वो अब फिर से किसी कंट्री की सुजैनिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे. तो दे वर लाइक कि हम क्यों पार्ट लें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, व्हाई शुड वी गो एंड टेक पार्ट इन दिस, लीव दिस. सो दे एक्सक्लूडेड देमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगर आप ओवरव्यू लें अगर असेंबली का, तो देयर वाज एवरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द कंट्री was present in that particular assembly except for Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi stayed himself away from this process of formation of constitution.
आपको पता होगा कि वो कोलकाता चले गए थे इन सब टाइम के, थोड़े कांग्रेस से नाराजगी हो गई थी उनकी, क्योंकि वो पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। और he even suggested Jawaharlal Nehru that ask Jinnah to come up and form a government. Ask Jinnah to make his representative come to Constituent Assembly. So Congress was not allowing महात्मा गांधी की, हम अगर जिन्ना को अलाउ कर देंगे तो जिन्ना 2 डोमिनियन बना देगा, कुछ भी कर देगा. So the relations between Gandhi and Congress were not good at that time. So Gandhi decided to stay away from all this and he went to Kolkata. You know, there is this particular ashram, there is a famous ashram, I am forgetting his name. So he went there, not the Sabarmati one, that's in Gujarat. I am talking about Kolkata. So this happened, he went to Kolkata and it was left to other personalities that yes, you, the 208 member from Indian National Congress, 73 from Muslim League and 15 independent can come up and make the, so now moving further, objective resolutions. इलेक्शंस हो गए थे, लोग आ गए थे, 296 सीट्स पे लोग आ गए थे. I told you about many princely states. I told you there was around 55, 52 princely state. It can be +1, +2, -1, -2 also, but I am talking about around 552 princely states because there was numerous small princely states also. So then came the objective resolution. It is very important क्योंकि क्वेश्चंस में आई रिमेम्बर अ क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स इवन इन जुडिशरी कि व्हाट जो प्रीएम्बल है, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन बाय द आइडिया ऑफ व्हिच रिजोल्यूशन, कि प्रीएम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया. तो व्हाट हैपेंड ऑन December 13, 1946. पहले मैं बता दूं, फर्स्ट सेशन of this assembly started on December 9, 1946. You can write down on your notebook, note copy, because I have not mentioned this in this PowerPoint presentation. So the first session was held on 9 December 1946. So on 13 December, Pandit Nehru presented objective resolution. Now, as the word says objective resolution, it meant the objectives of this assembly, that what kind of constitution they want to form. What are the things that they want to be included in the Constitution of India? So they laid down fundamentals and philosophy of the constitutional structure. So this was moved by Pandit Nehru. Remember this, that this objective resolution was moved by Pandit Nehru. It can be asked anytime in any kind of paper. And by this objective resolution, our preamble got the idea from objective resolution only. Also, what are the points in objective resolution? मैंने सब कुछ mention नहीं किया है क्योंकि बड़े-बड़े points थे, but मैंने उसको एक आध वर्ड्स में सॉवरेनिटी की बात करी गई है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन कंट्री. जस्टिस की बात करी गई है कि वी वांट टू गिव जस्टिस, वी वांट freedom to be given on to the citizens, we want equality, we want people can practice their belief, can practice their faith, there should be integrity in India, there should be safeguard for minorities, there should be equality of status and opportunity, there should be freedom of thought, there should be even for scheduled tribe and scheduled caste. So there were they described a lot of provisions that these should be the objective of this particular assembly, and we should inculcate all these features in the Constitution of India. So Nehru moved this objective resolution, and this resolution was passed on January 22nd, 1947. तो 9 दिनों के बाद इसको पास कर दिया गया था इन द असेंबली. तो प्रीएम्बल की मोटिवेशन का क्या थी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थी. और जो आज हम बात करते हैं, पीपल गिव क्रेडिट फॉर एवरीथिंग टू डॉक्टर अंबेडकर. He is very respected guy, Dr. Ambedkar, but there were other persons in the Constituent Assembly also who contributed to the formation of this wonderful constitution. तो ऐसा नहीं है कि आप solely सारा क्रेडिट डॉक्टर अंबेडकर को देंगे. डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, I agree to that fact. लेकिन there were other eminent members, means के.एम. मुंशी, डॉक्टर नेहरू, पंडित नेहरू, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना बड़ा बड़ा ड्राफ्ट लाया उन्होंने. For this particular session, I have to watch all the web series of Rajya Sabha TV on Samvidhan. So I watched everything in order to make this particular session. So you will see that there are contribution of many eminent personalities. Dr. Ambedkar was, we can see that the steering was in Ambedkar's hand, but there were many people who were guiding him also. तो सिर्फ अंबेडकर को ही क्रेडिट दे देना सही नहीं है. तो फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, जब लोग देखे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फंक्शन कर रही है,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी अच्छी आइडियाज लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रीडम की, इन सब ऐसी आइडियाज को लोग रख रहे हैं, तो वापस लोग आने लगे। वो प्रिंसली स्टेट जिन्होंने खुद को अलग रखा था, those members of princely state started to join the assembly gradually. धीरे धीरे they started to become the member of the assembly. Seats were already allotted to them, but they didn't join it. So ऐसा नहीं था कि उस 93 सीट पे आपने किसी और को बिठा दिया. Those seats were vacant. They were allotted to some particular prince. So if whenever they wish, they can send their representative. So later on, they started to send their representative. Even Muslim League, now it was clear that which part of the country is going to be Pakistan. तो कंट्री में ऐसे भी पार्ट भी थे जहां से मुस्लिम लीग के लीडर इलेक्ट हुए थे, लेकिन वो इंडिया में ही वो कंट्री का पार्ट रहेगा, ये पता था उनको। बहुत से लोग थे, जैसे अगर बंगाल से कोई मुस्लिम लीग का कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है, या फिर आंध्रा से इलेक्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश से इलेक्ट हुआ, तो ही स्टार्टेड टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकॉज ही न्यू दैट if he will not join the assembly, he will not get any kind of benefit because he is not going to merge in Pakistan, because Pakistan is going to be from northwest frontier, from Balochistan, from that Sindh and all, and in the other side you have Bangladesh. So they knew that there is no benefit in boycotting this constituent assembly. So members of Muslim League whose area came in central India started to join the assembly. तो धीरे धीरे असेंबली में पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गई। असेंबली, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं कल बोला था कि असेंबली दो फंक्शन परफॉर्म करती थी एक साथ। लेजिस्लेटिव बॉडी का भी फंक्शन परफॉर्म करती थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी फंक्शन परफॉर्म करती थी। मतलब उस समय गवर्नमेंट चलाता कौन था, हु विल रन द गवर्नमेंट। अब आपको मैं बताऊं, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिल गई। तो 1947 से 1949 तक जो रूलिंग होगी, जो गवर्नेंस होगी, वो किसके बेसिस पे होगी? दैट वुड बी डन, हु विल द पार्लियामेंट, उस टाइम पार्लियामेंट कौन होगा जो गवर्नेंस करेगा? इसके लिए वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बार बैठती थी, सुबह को तो लेजिस्लेटिव की तरह बॉडी की तरह काम करती थी, शाम को बैठती थी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह काम करती थी। दोनों फंक्शन वो साथ साथ। Okay, someone asking me to repeat the date of first session. Tabish, the first session held on 9 December 1946. Someone asked me that why did they added elephant in this logo? Utsav, it is not mentioned anywhere, but as far as I can think, due to my reasoning, I think it is related to the elephantized size of the constitution, as we know that it is biggest constitution in the world, biggest written constitution. So maybe something related to that. So I was talking about the assembly. So in the morning they worked as legislative body, they worked as the Parliament of India, and in the evening they worked as the Constituent Assembly, whose sole purpose was to enact to form a Constitution of India. तो आप देखिए कितने हार्ड वर्किंग लोग थे। सुबह एज अ पार्लियामेंट बैठते थे, शाम को एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठते थे। कॉन्स्टिट्यूंट, और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो इतना काम करना था कि पूरी एक कंट्री का आपको एक वर्किंग तैयार करना है। सो एवरीवन नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस। तो व्हेन दे सैट एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट। जब वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह बैठते थे तो राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होते थे। जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह बैठते थे तो जीवी मालवांकर वाज द प्रेसिडेंट। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी पार्लियामेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट से मेरा मतलब है स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उस समय जब आपको पता है कि क्वेश्चन की हु इज वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये सवाल बहुत बार आता है, तो इसका आंसर लोग देखते हैं जीवी मालवांकर, गणेश वासुदेव मालवांकर। ये नाम वहीं से आया, क्योंकि जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन करती थी तो जीवी मालवांकर प्रिसाइड करते थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तरह परफॉर्म करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करते थे। तो सुबह और शाम दोनों ही वक्त इसको फंक्शन किया जाता था, और एक टाइम वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी परफॉर्म करती थी अपनी फंक्शन, और एक टाइम एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया इन्होंने इंस्टेड ऑफ मेकिंग द फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? दे अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। तो हमारा नेशनल फ्लैग भी इसी असेंबली ने अडॉप्ट किया था, एंड द डेट वाज जुलाई 22 1947। हमारा नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया गया जनवरी 24 1950 में। नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया जनवरी 24 1950 में। तो ये सारी चीजें अडॉप्ट की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी सिलसिले में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बनाया गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्लाइड आई थिंक मेरे से मिस हो गई है, कि जब मैंने बनाई थी, मे बी डिलीट हो गई हो मेरे से, कि when this constituent assembly was formed, initially a temporary
speaker or temporary president was selected. It was Dr. Sachidanand Sinha. डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि सपोज करिए आज जो है ये हाउस वर्क में आया, तो आज प्रेसिडेंट कौन होगा? कोई प्रेसिडेंट तो चाहिए ना, समवन विल प्रिसाइड ओवर द हाउस. इलेक्शन तो चलिए 1-2 दिन में आप कर लेंगे कि हु इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट फॉर दिस हाउस, बट ऑन दैट वेरी फर्स्ट डे हु इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट? सो फॉर दिस प्रॉब्लम दे रिजॉल्व इट बाय फ्रेंच कॉन्सेप्ट. फ्रांस में क्या होता है, जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसको वो प्रेसिडेंट बना देते हैं, उसको प्रिसाइड करते हैं हाउस पे वो. तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए उन्होंने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली बना दिया गया, और लेटर ऑन जब इलेक्शन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस हाउस. और वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए इस हाउस के. वाइस प्रेसिडेंट बने थे एच सी मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, ये तो इनके फंक्शंस हो गए और ये हाउस कैसे परफॉर्म किया, ये सारी बातें हमने कर ली. अब लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ दिस असेंबली. इट वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी whose function was to prepare a draft for the constitution. तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई अगस्त 29, 1947. ये सब डेट आपको याद नहीं होगा तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं. दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस. इट्स नॉट लाइक कि आप स्ट्रेस लेके बैठ जाओ नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ था, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ था, मैं डेट भूल गया. इट्स नथिंग लाइक दैट. It is just for information. I want to give you as much information as I can give in this 40-day session. So इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ये जानकारी होनी चाहिए. तो डेट्स आप भूल जा रहे हैं, प्रेसिडेंट भूल जा रहे हैं, कोई टेंशन मत लीजिए. कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि असेंबली एक बनी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उसके लिए इलेक्शन हुए थे, उसमें कुछ नॉमिनेटेड लोग थे, कुछ इलेक्टेड लोग थे, उसमें मेजर ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि 208 लोग आपने देखा दे वर इलेक्टेड. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन द माइंड. रेस्ट द फैक्ट्स एंड नुआंसेस आप भूल भी जाओ तो ऐसा कोई इशू नहीं है. So now let's come to the most important part, that is drafting committee. So a drafting committee was set up on August 29, 1947. एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और कहा गया कि सर आपका काम है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना. कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कितने शेड्यूल होंगे, कितने आर्टिकल होंगे, कैसे कैसे होंगे. और इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मॉडर्न मनु कहते हैं. Even he is known as the father of the Constitution of India, or you can say the chief architect of the Constitution of India. तो ये सारी जो उपाधियां हैं, जो नेम है, वो डॉक्टर अंबेडकर को दी गई थी. और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सोचने वाली बात है, ऐसा कहीं लिखा नहीं बट आप सोचें तो डॉक्टर अंबेडकर डिडंट बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. अगर एक कमेटी बनानी है तो मेजोरिटी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी. दे कुड हैव मेड द चेयरमैन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी टू किसी भी आप कांग्रेस के मेंबर को बना सकते थे. आप सरदार पटेल को बना देते, आप नेहरू को बना देते, बट उन्होंने अंबेडकर को बनाया जिनकी पार्टी अलग थी. ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द टिकट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. आपको पता हो कांग्रेस और अंबेडकर की नहीं बनती थी. इवन गांधी एंड अंबेडकर में पूना पैक्ट किया था, तो बहुत इश्यूज थे अंबेडकर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के. स्टिल उस हाउस ने चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का डॉक्टर अंबेडकर को बनाया. सो दिस वाज द मोरल्स एंड आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ दोस पीपल. Even he belonged to a different party. Even there is ideological difference between Dr. Ambedkar and the National Congress. They selected Dr. Ambedkar to be the chairman of drafting committee and they gave them the most important post in that particular assembly. मतलब ये assembly में main तो drafting का ही काम था. उस drafting का जो chairman बना वो he was from a different party. His party name was Scheduled Class Federation. So Dr. Ambedkar was given this position, and it is said that it was suggested by Mr. Gandhi कि you should use the knowledge of Ambedkar, because Ambedkar was 3 PhD करा था उन्होंने. He was so knowledge, मतलब उस टाइम अगर इंडिया में सबसे नॉलेज लॉयर्स की बात करें तो उसमें अंबेडकर का नाम बहुत प्रोमिनेंट था. तो इसीलिए द हाउस थॉट दैट इट वुड बी बेस्ट if we will use the abilities of Dr. Ambedkar. So he was made the chairman of drafting committee. There were 7 members you can see: Dr. Ambedkar, N. Gopal Swami Iyengar, Aladi Krishna Swami Iyer, Dr. K. M. Munshi, Sayyid Muhammad Sadullah, and Amdava Rao T.T. Krishnamachari. So these person were given the task of drafting the constitution. लेकिन लास्ट के जो नाम है N. Madhav Rao, this is N. Madhav Rao. I have mistyped this. N. Amida Rao हो गया है. This is N. Madhav Rao. He was replaced by B.L. Mittal because
उनका हेल्थ डिटोरिएट कर गया था, और टीटी कृष्णमाचारी जो हैं वो भी रिप्लेस कर दिए गए थे डीपी खेतान से, बिकॉज टीटी कृष्णमाचारी डाइड ड्यू टू ओल्ड एज इन दिस प्रोसेस ओनली. सो लास्ट टू पीपल वर रिप्लेस्ड टिल द एंड ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट ऊपर के 5 लोग कंटिन्यू करते रहे. और these 7 people deserve lot of respect because they had done all the hard work in framing the Constitution of India. Now, enactment of the Constitution. So it took 2 years, 11 months and 18 days for our Constitution to be prepared. The Constitution was prepared on November 26, 1949. 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. बहुत सारे पैसे लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और उसके बाद ये बना दिया गया. जब initially when it was formed, it has 8 शेड्यूल. आपको पता है अभी शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं. So 400 plus articles हैं. But at that particular time there were 8 schedules, there were 395 articles and a preamble at the time of formation of this constitution. So constitution was finally formed on November 26, 1949. And at the end of this, they मतलब कुछ भी फॉर्म होता था तो they pass the resolution. They have to pass the resolution in order to make it empowered. So first they adopted the constitution. After that they adopted the preamble. ऐसा नहीं था preamble, आप constitution देखोगे तो preamble सबसे पहले आएगा, लेकिन इस प्रोसेस में preamble को लास्ट में इनेक्ट किया गया. इसका एक रीजन देते हैं. इसका रीजन ये देते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लेते हैं, और प्रीएम्बल में वो आइडियाज है जो हम अचीव करना चाहते हैं. अगर कंप्लीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमें लगता है कि प्रीएम्बल में जो आइडियाज लिखे हैं वही चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऐसा ना हो कि हम प्रीएम्बल में किसी दूसरे आइडियाज की बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज है ही नहीं. तो अगर द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल इज वेरी वेल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ओनली वी विल अडॉप्ट दिस प्रीएम्बल. सो दिस वाज, मतलब इतनी अच्छी थिंकिंग के लोग थे कि अगर हम इस चीज को अचीव कर पाएंगे तभी हम प्रीएम्बल आएंगे. तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड एंड लेटर दैट प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द असेंबली. अच्छा, ये अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को, लेकिन इनफोर्स ये हुआ 26 जनवरी 1950. इसकी भी एक स्टोरी है, व्हाई वाज इट इनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. सो रिमेंबर, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी की बात है, इन द ईयर ऑफ 1930 क्या हुआ कि लाहौर सेशन था. लाहौर में कांग्रेस का सेशन चल रहा था. उस सेशन में पंडित नेहरू ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज. He demanded complete independence and also complete self rule. And उन्होंने ये डेट डिसाइड करी थी कि हम 26 जनवरी को आजादी मनाएंगे. We will celebrate independence on 26 January. But fortunately or unfortunately, we got independence on 15th August. So the value of, in order to sustain the value of 26 January, they decided that we will enforce this constitution on 26 January 1950. तो 2 महीने वेट किया गया और उनको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 in order to celebrate the date of 26 January. Because on this particular date in Lahore session, Pandit Nehru demanded Purna Swaraj. That is why 26 January is celebrated as Republic Day. अच्छा, ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? व्हेन डू वी कॉल अ स्टेट टू बी अ रिपब्लिक? ये हम प्रीएम्बल की बात करेंगे तो मैं रिपब्लिक पे आऊंगा, बट नॉर्मली बता दूं, दो कंपोनेंट होते हैं रिपब्लिक के. जो मेजर कंपोनेंट यही होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज प्रेसिडेंट एंड ही इज इलेक्टेड. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिपब्लिक. ब्रिटेन इज नॉट रिपब्लिक क्योंकि ब्रिटेन में हेड कौन है? क्वीन है. सो हाउ कैन, एंड क्वीन इज नॉट इलेक्टेड. ये तो मोनार्च का प्रोसेस है, एक के बाद एक लोग आते हैं. सो ब्रिटेन इज नॉट रिपब्लिक बट इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. सो रिपब्लिक डे हम इसीलिए 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कर लिया. और कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करने में ये भी प्रोविजन था कि द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट, वुड बी इलेक्टेड. So that is why we celebrate 26 January as Republic Day, in order to remember the good date of 26 January, on which it was decided that we will get independence. But later on, the independence was achieved on 15th August, so it was celebrated as Republic Day. So this was the whole story of 26 January and Republic Day. Now, everything is not so good. There is certain criticism also.
सबसे पहले क्रिटिसिज्म की आती है दैट इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. Very genuine and valid criticism, because we talked that there were elected members also. 93 is such a big number out of 300 something. 93 लोग प्रिंसली स्टेट के थे, एंड दे कैन बी एनी पर्सन. ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनके आइडियाज जो हैं वो एक डेवलपमेंट के लिए अच्छे ना हो किसी कंट्री के. उनके आइडियाज बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, उनके आइडियाज बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. बट दे वर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. So it is criticized that it was not a complete representative body. There's another thing which I would like to discuss with you. हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, हम बाद में सब चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत जो हम जब हर प्रोविजन को लाएंगे. बट क्योंकि अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी कहानी बता रहा हूँ. तो इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. इसका एक और रीजन है. द अदर रीजन फॉर दिस इज दैट उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन किए गए तभी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं थी हमारी कंट्री में. नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मींस दैट एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर कैन वोट. बट उस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल के सेशन में कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक वी विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ये था कि कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही फ्रेंचाइज थी वोट करने की. वो लिमिटेड लोग ऐसे होते थे जो टैक्स पे करते थे या बहुत एजुकेटेड होते थे या जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पावर सबके लिए ओपन नहीं करी थी. इट वाज लिमिटेड. तो इवन जो इलेक्शन हुए उसमें भी वही लोगों ने वोट दिया, कुछ लोगों ने वोट दिया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट परमिट करती थी. तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. लेकिन बाद में जब 1950 में हमने इन्फोर्स कर लिया तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट आया. तो इन 1950 हमारे पास यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज आ गया था, जिसके अकॉर्डिंग एवरी पर्सन वाज हैज द राइट टू वोट हु इज बियॉन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ये नहीं थी. इसके दो क्रिटिसिज्म है जो हमने डिस्कस कर लिए. इसके बाद मैं और बात करता हूं आपसे कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत था ये. इसकी ये भी क्रिटिसिज्म करी गई कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज इट स्टार्टेड ऑन 9 दिसंबर 1946 एंड इट एंडेड ऑन 26 दिसंबर 1949. इतना लंबा टाइम पीरियड लिया. मतलब इसकी क्रिटिसिज्म में एक मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, मिस्टर नजरुद्दीन. तो नजरुद्दीन ने ऐसा कह दिया, दिस इज नॉट ड्राफ्टिंग कमिटी, दिस इज ड्रिफ्टिंग कमिटी. आप इतना ड्रिफ्ट करते हो, इतना टाइम लगाते हो. तो नजरुद्दीन अहमद जी ने कहा कि दिस इज अ ड्रिफ्टिंग कमिटी इंस्टेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. दे आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. इवन नॉट अ सॉवरेन बॉडी. ये भी क्वेश्चन किया गया. कहा गया दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज मेड बाय ब्रिटिशर्स. उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दिया जिससे आपको ये पावर मिली कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. तो आप सॉवरेन कहां से हुए? आपके ऊपर भी तो एक बॉडी हुई, एक एक्ट हुआ जिसने आपको ये पावर दिया ये असेंबली बनाने का. तो ये भी क्रिटिसिज्म किया जाता है. दो और क्रिटिसिज्म करते हैं कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, क्योंकि आपको पता है 209 नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम कांग्रेस वाज 209. तो बहुत बड़ा नंबर था. तो ये भी एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि कांग्रेस के डोमिनेटेड थे, तो जो कांग्रेस की आइडियोलॉजीज थी वो ज्यादा प्रमोट की गई. एंड लास्टली ये भी क्रिटिसिज्म करते हैं लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन था वहां पे. मतलब ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन थे क्योंकि इलेक्ट होके आए थे या लॉयर थे. आपने और जो फील्ड्स ऑफ लाइफ है उसको टच ही नहीं किया. इतनी बड़ी अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हो, इन द यू आर डूइंग अ फंक्शन ऑफ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो यू शुड टच people from all the dominions, but there were majorly lawyers and politicians. So this was also kind of a criticism for the constitution of India. Lastly आपको एक दो पॉइंट मैं ऐड कर दूं, मैंने इसमें नहीं लिखा, ज्यादा मैं हेक्टिक नहीं बनाना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं आते. ये दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस. कि सर BN राव, बेंगल नरसिंह राव वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ जाता है हु वाज द लीगल एडवाइजर. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक लीगल एडवाइजर भी थे सर बेंगल नरसिंह राव. और उन BN राव सर ने बर्मा की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी हेल्प करी है, मैं आपको बताऊं. तो BN राव वाज कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑल्सो देयर वाज अ सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, HVR Iyengar. ही वाज अ सेक्रेटरी. ऑल्सो जो कैलीग्राफी की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने करी थी. और उनके मतलब उन्होंने अपने हाथों से लिखा था इसको. कैलीग्राफी की गई थी प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा के थ्रू. और भी दो लोग थे, नंदलाल बोस, बेहोर राम मनोहर. इन लोगों, ये शांति निकेतन के लोग थे. इन लोगों ने ब्यूटीफाई किया था कॉन्स्टिट्यूशन को. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो अलग अलग पार्ट्स में पिक्चर्स बनी हुई है अच्छी अच्छी.
हमारी माइथोलॉजी की पिक्चर बनी गई है, इवन अशोक स्तंभ की पिक्चर है आपको, कुछ बुद्धा की पिक्चर मिल जाएगी, गौतम बुद्धा की, तो कुछ पिक्चर्स बनी गई, तो ब्यूटीफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको ब्यूटीफाई करने का काम नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर का था, जो दोनों ही शांति निकेतन से थे. So this was all some nuances of the Constituent Assembly. So basically, it was all about Constituent Assembly. Took 2 years, 11 months, and 18 days in order to form the Constitution of India. On 26th November 1949, they were able to adopt the Constitution of India. And from 26 January 1950, it was enforced in the country. And the reason for enforcing it on 26 January 1950 was in order to celebrate the date of 26 January, as in 1930, Pandit Nehru said that we will take complete independence. Also, some people are asking me about if Sachidanand Sinha was oldest member, then he should have been chosen, right? Yes, Sachidanand Sinha was chosen just because on the French concept. Jessica is asking that why wasn't Sachidanand Sinha became the president of the house. If you will see, the president of house is elected. लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो उनका इलेक्शन होता है, वो इलेक्ट किए जाते हैं, तो उनको इलेक्ट करते हैं और वो चूज होते हैं. मैं इन चैट आई एम गोइंग टू राइट सर्टेन नेम्स as people are confused. First of all, I am giving the name of B.R. Rao, who was legal advisor to this assembly. Now I will give you the name of Prem Bihari. He wrote, the calligraphy was his only. If you have any other doubt, you can ask in the chat box. I will reply. I am going through the old doubts also. Technically, do we not say that there are 395 articles only? At that particular time, there were 395 articles. Now there is through 21 capital A. So this is, will you consider it a part of 21 or will you consider it away from the 21? तो ये चीजें होती हैं, आप टेक्निकली अब कुछ भी कह लो, बट अलग अलग आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, तो इवन कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो गए, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि 395 ए है. बी एन राव, सॉरी, बी एन राव, B.N. Rao. I will WhatsApp these things क्योंकि चैट पे थोड़ा बताना कंफर्टेबल उतना नहीं होता. I will WhatsApp all these details. So B.N. Rao was the legal advisor of the Constituent Assembly. We have Prem Bihari, who has handwritten this constitution, and they were a member from this Shanti Niketan, Nandlal Bose and Bihar Ram Manohar, who beautified this. B.N. Rao himself helped in formation of Constitution of Burma. Someone has asked me that who helped in the formation of Burma's constitution. So B.N. Rao helped in the formation of Burma's constitution also. So he was such an eminent personality. DPSP की हम बात करेंगे, B.N. Rao का माइंड था DPSP. मतलब the assembly was in the position कि सर DPSP नहीं लाते हैं, क्या ही वैल्यू है DPSP की when it is not enforceable. But we will discuss about all the reasonings behind things. So Riddhi Jain is raising her hand. I think she want to ask something. Do you want to ask something? I am unmuting you, Riddhi. I don't think so. So, okay, if there is any issue, you can WhatsApp me. No issues. I'm going to end this session. Thank you. From tomorrow, I will be dealing with the salient features of the Constitution, important features of the Constitution, and from which country or which thing we have borrowed different parts of the Constitution. So from tomorrow, we are going to deal with the nuances of the Constitution. Till today, I have discussed about the history. In first class, we discussed about that what is Constitution, and today we discussed about the Constituent Assembly. I will share this PPT with you. In this PPT only, I will add on about B.N. Rao, who was a legal advisor. I will talk about Prem Bihari. I will talk about all these eminent person, and then I will share this. Thank you for listening with me. Okay, bye. There's another doubt. Okay, thank you. Yes, Naman, do you want to ask something?